مساجد کو سماجی مراکز بنانے کی تربیتی ورکشاپ، مہاڑ پلاکپور کے 33 ذمہ داران کی شرکت۔ بدھ 15 اپریل 2026 کو جمیع جماعت المسلمین مہاڑ پلاکپور تعلقہ کے 33 ذمہ داران اور اراکین نے تنظیم کے صدر جناب دلدار محمد شفیع پرکر کی قیادت میں ممبئی کی تاریخی جمعہ مسجد کرافورڈ مارکیٹ میں منعقدہ ایک اہم تربیتی ورکشاپ میں شرکت کی۔ ورکشاپ میں مفتی اشفاق قاضی صاحب اور ان کی ٹیم نے شرکاء کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور مساجد کو دینی، سماجی اور اصلاحی مراکز بنانے کے عملی طریقوں پر رہنمائی دی۔ اس موقع پر جامع مسجد کی تاریخ، اس کی خدمات اور تقریباً 200 سال پرانے علمی مخطوطات پر روشنی ڈالی گئی۔ خاص طور پر کوکن اور مہاڑ کے علماء کے علمی ورثے سے شرکاء کو متعارف کرایا گیا۔ شرکاء کو مسجد میں قائم فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کے تحت جاری پری ویڈنگ کاؤنسلنگ، کیریئر گائیڈنس اور سماجی اصلاحی خدمات کے بارے میں بھی بتایا گیا تاکہ مساجد کو عوامی رہنمائی کا مؤثر مرکز بنایا جا سکے۔ بعد ازاں قافلہ اسلامی جمخانہ نریمن پوائنٹ پہنچا، جہاں دوسری نشست میں مساجد کے جامع نظام، امت کی فلاح، تنظیمی استحکام، مائکرو فائنانس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کیا رسول اللہ بہت حالات خراب ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، 3 دن سے پریشان۔ کہا گھر میں کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں، کچھ تو ہوگا۔ کہا کہ ایک چادر اوڑھنے کی ہے، اسی کو بچھاتے ہیں، اسی کو اوڑھتے ہیں، اور ایک کٹوا پانی پینے کا ہے، تانبے کا کٹوا ہوتا تھا، بس 2 چیزیں۔ کہا دونوں لے آؤ۔ دونوں لے آئے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ بھئی یہ 2 کون خریدنے کے لیے تیار ہے؟ دستاویزی امور، SIR اور وقف جیسے اہم موضوعات پر رہنمائی دی گئی۔ برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک، وہ کیسے بنے گا، کب بنے گا، کہاں بنے گا، کتنے دنوں میں بنے گا، خود سے بنے گا، ایجنٹ سے بنے گا، اس کے اوپر ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اسلامی جمخانہ کے صدر نے مہاڑ پلاکپور کے کاموں کو سراہتے ہوئے اتحاد، تعاون اور وقت کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ حضرت جب ہے تو سوال ہی نہیں، خیر جو بھی کام ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا تھا مجھے اس تعلق سے، میں نے ٹھیک ہے، بولے اب دوپہر کے وقت میں ہم لوگ میٹنگ کر لیں گے۔ میں نے آپ کر لیجیے دوپہر کے وقت میں۔ ورکشاپ کے اختتام پر شرکاء نے اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا اور آئندہ بھی ایسے تربیتی پروگرام جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ آئے دیکھتے ہیں آئے ہوئے مہمانوں نے کیا کہا۔ ناظرین، اس وقت ہم اسلام جم خانے کے اندر ہیں۔ اسلام جم خانے کے اندر ایک پروگرام چل رہا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو کس طرح مسجد نبوی کی طرز پر بنائیں اور انسان کی ہر ضرورت مسجد سے کس طرح پوری ہو، اس کے لیے کس طرح کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس تعلق سے مفتی اشفاق قاضی صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے، اس تعلق سے بھی اندر بات ہوگی اور بھی ساری چیزیں ہوگی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور پروگرام کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ جو آئے ہوئے مہمان ہیں کوکن کی طرف سے، مہاڑ سے اور مختلف علاقوں سے، ان سے بات بھی کرائیں۔ ہمارے ساتھ مفتی اصغر صاحب جو مہاڑ سے آئے، کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج کا جو اسلام جم خانہ میں پروگرام چل رہا تھا اس تعلق سے؟ آج کا یہ جو پروگرام ہوا یہ نہایت ہی شاندار پروگرام رہا۔ اس پروگرام کے اندر ہم نے جو باتیں سیکھی ہے وہ یقیناً ہمارے لیے نئی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے علاقے میں جا کر، اپنی بستی میں جا کر ان چیزوں پر اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہے۔ خاص طور پر مساجد کا جو انتظام ہے اور مساجد سے ہم کون سی خدمات انجام دے سکتے ہیں، ان چیزوں پر حضرت مفتی اشفاق صاحب نے جو فوکس کیا ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ ہر مساجد والوں کو، ہر بستی والوں کو اپنے علاقے کے اندر اس طریقے کے کام کرنا چاہیے۔ اسلام جم خانہ میں آنے سے پہلے آپ لوگوں نے جمعہ مسجد کا بھی دورہ کیا اور جمعہ مسجد اور فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کو بھی دیکھا، وہاں کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملا؟ فیملی فرسٹ گائیڈ سینٹر کے اندر بھی جانے کا موقع ملا تو ہم نے وہاں پر جو کاؤنسلنگ کا جو ان کا کنسیپٹ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر طلاق، خلا، اس کے جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس پر جو کام کر رہا ہے یہ ادارہ وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ تقریباً 1500 سے زائد کیسز جو ہے انہوں نے اپنے ادارے کے اندر حل فرمائے۔ ایسے کئی مدعے انہوں نے بتائے کہ جو بالکل طلاق کے اینڈ تک گئے ہوئے تھے، اس کو بھی انہوں نے ریورس کر کے آج وہ فیملی جو ہے خوش ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے۔ تو اس طریقے کے سینٹر ہر علاقے میں ہونا چاہیے۔ سیکریٹری ہیں جن کے بینر تلے یہ پورا قافلہ آج ممبئی پہنچا ہے، سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے تعلق سے کہ جو آپ کا پروگرام بنا ممبئی کا اور فیملی فرسٹ اور جمعہ مسجد کے دورے کا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैयाज़ अहमद कालसेकर है। जमी जमातुल मुस्लिमीन महाड़ और पोलतपुर तालुका की एक ऐसी तंजीम है जो 58 बस्तियों पर मुश्तमिल है, जिसके अतराफ़ व अकनाफ़ की जितने बस्ती है उसकी बस्ती के जो ज़िम्मेदारान हैं उनमें से वो मेंबर के ज़रिए से ये तंजीम चल रही है। दरअसल जमी जमातुल मुस्लिमीन जमाती निज़ाम को मुस्तहकम और मज़बूत और कारगर बनाने के राह पर चल पड़ी है, जिससे कि अतराफ़ व अकनाफ़ की जो बस्तियाँ है वहाँ का जो जमाती निज़ाम है वो और मज़ीद मज़बूत हो। आज का ये जो सफ़र है उसकी गर्ज़ व गायत कुछ यूँ है कि जो मस्जिद खुसूसी तौर पर जो मस्जिद है उसको आज की तारीख़ में लोगों ने सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने का मकाम बना के रखा हुआ है। दरअसल अभी मुफ्ती अशफाक काजी साहब ने जो हमारी रहबरी रहनुमाई की, जो तकरीबन सुबह 11 बजे से लेकर अभी तक चल रहा था प्रोग्राम, उसमें उन्होंने बताया कि मस्जिद को दौरे नबूवत की तरह से इस्तेमाल में लाया जाए तो बहुत सारे समाजी, रिफ़ाई और तिब्बी और इल्मी एतबार से उम्मत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाया जा सकता है। मुफ्ती साहब की एक अहम कोशिश है, दर्द है कि उम्मत का हर लड़का व लड़की जो शादी करने वाले हैं, जो जवान हो चुके हैं, वो एक कोर्स अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, कोर्स करें शादी से पहले, ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे और तलाक व खुला ना हो। आपकी जमात उस कोर्स को लेकर कितनी संजीदा है कि उसको किस तरह आप कोकन के हर इलाके, हर गाँव में वो कोर्स जवान बच्चे और बच्चियों को करवाएंगे? जैसा अभी मुफ्ती साहब ने अपने रहनुमाई खिताब में हमें बताया कि हालिया दिनों में हालात के एतबार से जो मसाइल दरपेश है, यानी शादी के बाद कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 1 साल में मामला तलाक तक पहुंचता है, तो वो दरअसल वो इसीलिए पहुंचता है कि दोनों दूल्हा या दुल्हन या लड़का या लड़की या दोनों ख़ानदान की उस तरह से जहन साजी नहीं होती है। तो मुफ्ती साहब ने जो बात बताई उस एतबार से अगर उसको संजीदगी से लिया जाए तो वो जो प्री मैरिज काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है उस बात की कि शादी के पहले वो लड़की को पता चले कि उसके होने वाले शौहर के हुकूक क्या है, और जो शौहर है यानी लड़का है, दूल्हा है, उसको पता चले कि शादी के बाद मुझ पर मेरी बीवी के क्या हुकूक है। अगर वो दोनों चीज़ें आपस में समझ में आ जाती है तो इंशाअल्लाह ताला ये जो शादी की गाड़ी है वो लंबी दूर तक चली जाती है। मेरे कहने का मकसद ये था, कोर्स तो है, मुफ्ती साहब का दर्द भी है, आप अपने तंजीम के तहत ये अपने नौजवानों तक कैसे पहुंचाएंगे इसको? ये कोर्स ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है? हम हमारे जमी जमातुल मुस्लिमीन के मातहती में जितने भी बस्तियाँ हैं वहाँ पर इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे, उसके ऊपर ज़ोर देंगे कि शादी के पहले हर लड़का लड़की जो शादी के बंधन में बंधने जा रहा है वो ये कोर्स करे। अगर मुमकिन हो तो तुरंत कर ले या फिर शादी के कुछ दिनों पहले कर ले। तकरीबन कुछ 20, 25, 30 घंटों का 8 घंटों का मुश्तमिल ये कोर्स है जिसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जिससे कि बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो हम हमारी तरफ से पूरी संजीदगी से इसके ऊपर ज़ोर देंगे, इसकी अहमियत को उजागर करेंगे कि दूल्हा दुल्हन जो है वो इस कोर्स को करे। हमारे साथ जमी जमातुल मुस्लिमीन के सदर हैं। हम जानना चाहेंगे आज का जो प्रोग्राम आपकी तरफ से रखा गया मुंबई के अंदर, इस ताल्लुक़ से आपके जहन में कैसे ये ख़यालात आया, किस तरह वो हम रखना चाहिए, और फिर किस तरह अपनी पूरी टीम को, पूरे लोगों को मुंबई आप लेकर आए और ये प्रोग्राम में शरीक किए? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब इन्हें चलना फिरना होता है तो हम देखते हैं कि जो टीचर हजरात है तो उनकी ट्रेनिंग होती है गाहे बगाहे, डॉक्टर हजरात है उनकी भी ट्रेनिंग होती रहती है, यानी हर शोबे के लोगों की ट्रेनिंग होती रहती है। तो ये हमारे जमाती निज़ाम है, तो इनके जो ज़िम्मेदारान है, सदर है, सेक्रेटरी है, तो इनकी भी एक ट्रेनिंग होना चाहिए। तो हम किस तरह से हम ज़िम्मेदारी को मुकम्मल कर सकते हैं, हम किस तरह से हमारे जो हिसाबात है, किताबात है, ऑडिट है, हम किस तरह से हम अपडेट रखना चाहिए, और फिर जो हमारे जो ज़िम्मेदारी दी गई है तो हम ज़िम्मेदारी को कैसे अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो इस सिलसिले में मुफ्ती अशफाक काजी साहब से रब्ता किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा दिन ये सेशन रखा गया जिसमें हमारी ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी और मसाजिद से हम किस तरह से फलाही रिफाई तालीमी काम कर सकते हैं, इस सिलसिले में इन्हें मुकम्मल रहनुमाई की गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद डॉक्टर कश्मीरी साहब के ज़रिए डॉक्यूमेंटेशन के SIR के बारे में मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात दी गई और तशफ़ी बख्श मालूमात हमें मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। जमी जमात मुस्लिमीन ख़जानची साहब है, सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप
मुंबई तशरीफ़ लाए, सुबह से शाम हो गई, मुंबई जुमा मस्जिद भी गए, फैमिली फर्स्ट गार्डन सेंटर भी देखा आपने, इस्लाम जिमखाने में भी मुफ्ती अशफाक कादरी साहब और इरफान अजमेरी साहब का आपने खिताब सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम के ताल्लुक़ से? देखिए, हम सुबह से यहाँ पे आए, माशाल्लाह मस्जिद जमा मस्जिद जो ये है वहाँ पे हम गए, उसका पूरा तारुफ देखा, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ चल रही है वो देखी, और फिर जो मुफ्ती साहब ने जो खिताब किया, आज हमें मालूम पड़ा कि उन्होंने जो बताया कि 51 जो ऐसे काम है जो मस्जिद से ले सकते हैं। हमने मस्जिद को नमाज और इसके लिए सिर्फ महदूद रखा था, लेकिन आज हम इस यहाँ से लेके जा रहे हैं कि यहाँ से इतने सारे काम हो सकते हैं जिससे हमारे कौम का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जी, किताब आपके हाथ में है जो मुफ्ती साहब ने लिखी है, और इसको लेकर के आप अपने मकाम पे जा रहे हैं, क्या कुछ कोशिश होगी इस किताब में जो 51 काम लिखे हैं उस पूरे काम को अपने मस्जिद के ज़रिए और अपने इलाके के अंदर जो मस्जिद है उस मस्जिद के ज़रिए इसको करने की कोशिश करेंगे? जी, इसके लिए कुछ जी बिल्कुल। देखिए, ये किताब मैंने ली है, सारे हमारे जितने भी वफाद आए उसमें सबको ये किताब दी गई, तो हम लोग सिर्फ मेरी मस्जिद तक ही महदूद न रखते हुए जो हमारी जमी जमातुल मुस्लिमीन महाड़ पोलादपुर तालुका है उसमें 58 गांव है, तो उन गाँव तक ये पैगाम हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ रईस साहब हैं और पूरी टीम है, तकरीबन 30 से 35 लोग महाड़ से यहाँ आए। कैसे ये प्रोग्राम बना मुंबई आने का, और फिर क्या कुछ नया यहाँ सीखने को मिला? मुंबई आने का प्रोग्राम तो मेरे लिए तो एकदम अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। मैं हमारा एक ग्रुप है उसके ऊपर मैंने इसकी ऐड देखा, तो मैं दिलदार भाई को फ़ोन किया था, बोला ऐसा ऐसा प्रोग्राम में जाने का, बोला हाँ जाने, तो इस तरह से मैं इधर आया। और दूसरी बात, इधर आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें नई अभी हम तो तिफले मकतब ही है, अभी तक सीख ही रहे, तो बहुत सी नई चीज़ें समझ में आई कि जमात के लेवल में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तकरीबन 4 से 5 घंटे का प्रोग्राम था, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप इससे पहले बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता था, आपको ऐसे सीखने को मिली? जी, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ जैसे उन्होंने बोले ना कि बहुत से पॉलिसी निकलते हैं अपने लिए भी है, माइनॉरिटी के लिए भी है, तो वो चीज़ें हमको मालूम नहीं थी। तो उसमें जो नंबर जो है वो कहने 100 के ऊपर है, तो बहुत बड़ी बात है, इसको हम भी फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाअल्लाह। हमारे साथ इसहाक फ़िकर साहब हैं, हम इनके भी ख्यालात जानना चाहेंगे। सर, आप यहाँ प्रोग्राम में आए, कैसा लगा आपको मुंबई आकर के इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होना? हम कोकन से आए और हमारी बेहतरीन रहनुमाई हुई। मुफ्ती साहब को भी काफ़ी मुतालिया था, उसी तरह डॉक्टर साहब को भी काफ़ी नॉलेज और खुद आप PhD भी हैं, और समाजी एतबार से हमारी बस्ती के एतबार से आज का जो वर्कशॉप बहुत ही हमारे लिए मुफीद साबित होगा, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस वर्कशॉप को कामयाब करके आइंदा मुस्तकबिल में हमारे समाज, हमारी कम्युनिटी के लिए इसको अमल में लाएंगे। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त हम इस्लाम जिमखाना के अंदर हैं, और यहाँ कोकन से तकरीबन 35 से 40 अफराद यहाँ शामिल थे, और उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया, उन्होंने अपने तासुरात पेश किए, उनसे हमने सवाल किया, उनसे जानने की कोशिश की ये प्रोग्राम कैसा लगा। हम फिर आपको रूबरू कराएंगे किसी और अहम जगह से, किसी और अहम शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।